Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Hello students. Now we'll start problem number 12. Problem number 12. The directors of the Electrical Equipment Company Limited, having an authorized capital of rupees 10 lakhs, issued a prospectus inviting applications for 75,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, and for 5,000 5% debentures of rupees 100 each at rupees 98 per debenture. The shares were payable rupees 5 on application, rupees 5 including premium on allotment, and the balance in 2 equal installment of rupee 1 each. The debentures were payable in full on application. This is the first problem in which the company is issuing both shares as well as debentures. So totally how many equity shares are issued? 75,000 equity shares are issued. The face value of each share is 10 rupees, but it is issued at 12 rupees, 2 rupees premium. And 5,000 debentures of rupees 100 each, but issued at a discount at rupees 98 per debenture. The share were payable as 5 rupees application, 5 rupees allotment, including premium. Then 1 rupee first call, 1 rupee final call. The capital offered was subscribed and the whole of the debentures issued were applied for immediately. यानी जितने shares company issue करी थी पूरे shares public subscribe कर दी. There is neither under subscription nor over subscription. The amounts were received as follows. The full amount due on application and allotment of shares. Application allotment का पूरा पैसा आ गया. No due. The full amount on application for debentures. Debentures का भी पूरा पैसा आ गया. 74,000 on account of first call on shares and 70,000 on account of final call on shares. Actually, first call and final call rupee 1 per share. तो 75,000 shares है तो 75,000 rupees आना चाहिए first call का और 75,000 final call. But here it is given that 74,000 was received on first call and 70,000 are received on the second and final call. That means there are calls in arrear. Then the shares of one shareholder who failed to pay the first and final call on 500 shares held by him were forfeited after giving him due notice. एक shareholder के पास 500 शेयर थे, उन्हें फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करा, सेकंड कॉल भी नहीं पे करा, बाकी का अमाउंट पे कर दिया ना, उसके शेयर्स forfeit कर दिए. Draft journal and cash book entries to record the above transaction and state how they would be shown in the balance sheet. So problem is very simple. First of all, it is asking you to show the cash book as well as journal entries. So this is the cash book and these are the journal entries. अब journal entry पास करते वक्त वो entries पास नहीं करेंगे जिसमें बैंक अकाउंट आता. Example, first entry बैंक अकाउंट data to share application entry आती. अब ये entry पास नहीं करना. जहां पर भी बैंक अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा उसको डायरेक्टली कैश बुक में डाल देंगे. डायरेक्टली वी पोस्ट इट इन द कैश बुक. वी विल नॉट पास एनी एंट्री. हाँ, अदर एंट्रीज वेयर कैश इज नॉट, बैंक इज नॉट इन्वॉल्व, फॉर देम एंट्रीज विल बी पास्ड. फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड. तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन. तो टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स इनटू 5 रुपीज. एक शेयर के ऊपर 5 रुपये एप्लीकेशन मनी. 3,75,000 रिसीव हो गए. तो फर्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट completed. Now transfer the share application to share capital. The entry will be share application account data to share capital account. Share application account data to share capital account. 75,000 into 5. 3,75,000. Being the share application money transferred to share capital. पहली entry होगी. अब second entry debentures. So how many debentures are issued given in the problem? 5,000 debentures of rupees 100 each. 5,000 debentures of rupees 100 each. 5 lakh rupees आना चाहिए. But the company is issuing at 98 rupees, 2 rupees discount.
तो 5000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, एक डिबेंचर के ऊपर 98 रुपीज आ रहा, तो बैंक अकाउंट डेटार टू डिबेंचर्स अकाउंट, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेटार टू डिबेंचर्स। तो डेबिट साइड टू डिबेंचर्स 5000 डिबेंचर्स इंटू 98 4,90,000 हो गया। अब इसके ऊपर 2 रुपीज डिस्काउंट हो गया, 5000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज डिस्काउंट, ये ना 10,000 रुपीज डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अलाउड। तो एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेटा टू डिबेंचर्स अकाउंट, द एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेटा टू डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेटा टू डिबेंचर्स 10,000। एक शेयर के, एक डिबेंचर के ऊपर 2 रुपये डिस्काउंट है, 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपये 98 रुपीज में इश्यू करे, तो 2 रुपीज इंटू 5,000 10,000 बीइंग द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देन शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन हो गया, अब अलॉटमेंट में आ जाएंगे। एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटार टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट मनी के जो 5 रुपये है, 5 रुपये में 3 रुपये शेयर कैपिटल है और 2 रुपये प्रीमियम है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटार 75,000 इंटू 5 3,75,000 टू शेयर कैपिटल 75,000 इंटू 3, 5 रुपये में 3 रुपये शेयर कैपिटल के, 75,000 इंटू 3 2,25,000 टू शेयर प्रीमियम 75,000 इंटू 2 1,50,000 बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री विल बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेटार टू शेयर अलॉटमेंट, कितना शेयर अलॉटमेंट है 3,75,000, तो बैंक को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट 75,000 इंटू 5 3,75,000 कंप्लीटेड। तो वी हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन, वी हैव कंप्लीटेड अलॉटमेंट और डिबेंचर्स भी खत्म हो। नाउ विल कम टू द फर्स्ट कॉल। चलिए फर्स्ट कॉल पे आ जाइए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल 1 रुपये का है और फाइनल कॉल भी 1 रुपये, राइट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, 75,000 rupees being the first call money due. Then first call money received. अब फर्स्ट कॉल मनी जब रिसीव कर लेते तो बैंक अकाउंट डेटार टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन प्रॉब्लम में कितना दिया है 74,000, 75,000 आने का था, यहां पर लिखा ना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000, बट द अमाउंट रिसीव्ड गिवन इन द प्रॉब्लम इज 74,000, तो यहां पर 1,000 रुपए कॉल्स इन अरियर। देन शेयर फाइनल कॉल, एंट्री विल बी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 75,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी, 75,000 रुपीज बीइंग द शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, द डायरेक्शन फॉर दिस एंट्री। अब 75,000 रुपीज आने का है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अब आ गया, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो बैंक को डेबिट करेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बट द अमाउंट गिवन इन द प्रॉब्लम इज 70,000, 75,000 75,000 रुपीज आने का है, लेकिन प्रॉब्लम में दे दिया ओनली 70,000 रुपीज आर रिसीव्ड, बाकी के 5,000 रुपए कॉल्स इन एरियर, राइट। ये हो गया। नाउ विल कम टू द कॉल्स इन एरियर। पहले कॉल के ऊपर 1,000 रुपए कॉल्स इन एरियर है और दूसरे फाइनल कॉल के ऊपर 5,000 5,000 रुपए ड्यू, टोटली 6,000 रुपीज आर कॉल्स इन एरियर। तो एंट्री विल बी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेटा आर 6,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 टू शेयर फाइनल कॉल 5,000। हो गया, कंप्लीटेड ऑल द एंट्रीज। नाउ फॉरफीचर, जो शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स है, यस 500 शेयर्स है, उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं पे करा, फाइनल कॉल नहीं पे करा, उसके शेयर्स फॉरफीटेड। तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज 5,000 टू शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट 500 इंटू 8, उन्हें फर्स्ट कॉल का 1 रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिया, तो 10 रुपये में 2 रुपये नहीं पे करा, तो 8 रुपए पे कर दिया, तो 500 इंटू 8 रुपीज 4,000 रुपीज शेयर फॉरफीटेड टू कॉल्स इन एरियर 1,000। दिस इज द एंट्री फॉर forfeiture of shares, the end. These are the entries. Now we have to show the balance sheet. A balance sheet, equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserves and surplus. Then non-current liabilities. According to the new format, we should not write debentures in the balance sheet. फॉर्मेट के हिसाब से डिबेंचर्स बोल के बैलेंस शीट में नहीं लिखना, उसका फॉर्मेट ये नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो आइटम रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को शो करना नोट्स में,
नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर डिबेंचर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3, नोट नंबर 3 5000 ये बताएंगे, मालूम करेंगे। देन एसेट्स में, करंट एसेट्स में बैंक और अदर करंट एसेट, द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये आइटम्स जो लिए हैं इसको नोट्स में बताऊंगा। तो पहला नोट शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल प्रॉब्लम में दे दिया 10 लाख रुपीज है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। रिमेंबर ये सारे आइटम्स डिस्क्लोज करना मस्ट है, क्योंकि न्यू फॉर्मेट के हिसाब से एवरीथिंग शुड बी क्लियरली शोन इन द नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड 74,500। देखिए एक्चुअली 75,000 शेयर्स इश्यू करे थे, लेकिन बाद में 500 शेयर को फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, फिर रीइश्यू नहीं करे उसको। कैंसिल करने के बाद क्या रीइश्यू करे, नहीं दिया प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब खाली कैंसिलेशन हुआ, रीइश्यू नहीं हुआ। तो अब इस वक्त मार्केट में 74,500 शेयर्स ही पब्लिक के पास है। तो 74,500 शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप 7,45,000, 7,45,000 रुपीज शेयर कैपिटल। अब उसमें से कॉल्स इन एरियर, देखिए कॉल्स इन एरियर को डेबिट कितना करे थे यहाँ पर 6,000, फिर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिए 1,000। तो कॉल्स इन एरियर पे 5,000 रुपए भी बाकी है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, तो वो कॉल्स इन एरियर 5,000 रुपीज माइनस कर दिए, 74,000, 7,40,000। अब शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, हियर शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय ₹4,000, 4,000 रुपए शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में है, इसको ट्रांसफर नहीं करते कैपिटल रिजर्व में। री इश्यू करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचा तो वो बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो जब तक के री इश्यू नहीं हुआ फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो वो अमाउंट को हम ऐड कर देना पेड अप कैपिटल में। तो 7,44,000 रुपीज इज द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल 7,44,000। अब रिजर्व्स इन सरप्लस, ये रिजर्व्स इन सरप्लस में शेयर प्रीमियम 75,000 शेयर्स इश्यू करे, एक एक शेयर के ऊपर ₹2 प्रीमियम रिसीव कर लिए, 75,000 इंटू 2 1,50,000 शेयर प्रीमियम आ गया पूरा। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, थर्ड नोट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक ही आइटम है, दैट इज डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपीज, पूरा 100 रुपीज लेना। कितने 5,000 डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख, 5 लाख रुपए का डिबेंचर्स, राइट। देन अदर करंट एसेट्स, ये बैंक बैलेंस 13,84,000 तो आप मालूम कर ले सकते हैं, जहां जहां बैंक अकाउंट यहाँ पर है ऑलरेडी। ओके, कैश बुक वी हैव प्रिपेयर्ड, इन कैश बुक वी हैव ए बैंक बैलेंस ऑफ 13,84,000, ये 13,84,000। देन अदर करंट एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्चुअली ये फिक्टिशियस एसेट है, लेकिन नए फॉर्मेट में स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि कौन से हेड में लेंगे। तो टाइम बीइंग विल गिव ए नोट दैट वी हैव टेकन द फिक्टिशियस एसेट अंडर अदर करंट एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 10,000 रुपए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर डेबिट करे थे, वो 10,000 रुपए डेबिट बैलेंस बता रहा है, इसीलिए एसेट साइड पे शो करेंगे। दैट्स इट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 12. Come on, now we'll start problem number 13. Shiva Company Limited offered to the public 20,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹5 per share. The payment was to be as follows: on application ₹20, on allotment ₹35, including premium. So actually ₹5 is the premium, ₹30 is the capital. On first call 25, on second and final call 25. So total it is 105. Applications were received for 35,000 shares over subscription. So actually shares issued was 20,000, but applications received 35,000. Application for 10,000 were rejected. Applications for 15,000 shares were allotted 10,000, and shares and the remaining applications were accepted in full. The directors made both the calls. One shareholder's 500 shares failed to pay the 2 calls. As a consequence, his shares were forfeited and reissued as fully paid at ₹80 per share. तो एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर थे, उन्हें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करा, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, फिर रीइश्यू करे ₹80. Generalize the above transactions on the basis of the given information. We are not required to prepare the ledger accounts or balance sheet. Simply we have to pass the journal entries, right? Come on, we'll start now. First entry,
as usual bank account data to share application account, application money received. So 35,000 applications are received. The application money is 20 rupees. So 35,000 into 27 lakh rupees application money received. Second, transfer the application money to share capital. So share application account data to share capital. 20,000 shares into 20 rupees, 4 lakh. Being the application money transferred to share capital. Now share application account data to bank. Rejection. How many rejections are there? Applications for 10,000 shares are rejected. 10,000 shares के applications को reject कर दिए, वापस कर दिए. तो share application account data to bank. 10,000 into 20, 2 lakh rupees. अब देखिए application money आया था 7 lakh rupees. उसमें से 4 lakh rupees capital में चले गए और 2 लाख रुपया रिटर्न कर दिए. तो कितने हो गए? 4 लाख प्लस 2 लाख, 7 lakh rupees are adjusted. अभी 1 लाख रुपया है application. That 1 lakh rupees will be transferred to calls in advance and this will be adjusted in allotment. तो share application account data to calls in advance 1 lakh rupees. ये 7 lakh में से 4 lakh 2 lakh चले गए, 6 lakh 1 lakh rupees is transferred to calls in advance. Now allotment, share allotment, share allotment account data. प्रॉब्लम में दे दिया allotment money 35 rupees है. वो 35 rupees में 5 rupees प्रीमियम है और 30 rupees कैपिटल है, तो अलग अलग कर देना. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा 20,000 into 35, 7 lakh. To share capital 20,000 into 30, 6 lakh. To share premium 20,000 into 5 rupees, 1 lakh. Being the allotment money due. Same entry as usual what we have passed in the previous problems. Now allotment money received. Allotment money के लिए totally 7 lakh rupees allotment money है, जिसमें 1 lakh rupees already we have received as calls in advance. application money में 1 लाख रुपए ज्यादा आ गए थे. अब वो 1 लाख रुपए application का पैसा allotment में adjust करेंगे. तो out of 7 lakh rupees, 1 lakh rupees will be adjusted from calls in advance. तो amount received will be 6 lakh. तो bank account data are 6 lakh, call in advance account data are 1 lakh, to share allotment account 7 lakh. Being the allotment money received. Now we'll come to the first call. Share first call account data to share capital. 20,000 shares are there. Each share first call money is 25. First call money 25, final call money 25. तो first call के लिए 20,000 shares 25 rupees 5. Being the first call money due. Narration being the first call money due. A first call money received. अब प्रॉब्लम में दिया कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है. ही हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल, ही हैज नॉट पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो 20,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स के पैसे नहीं आए, बाकी के 19,500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी आ गया. तो बैंक अकाउंट डेटा 19,500 into 25, 4,87,500. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेटा 500 शेयर्स into 25, 12,500. टू शेयर फर्स्ट कॉल 5. तो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करे 5 लाख, यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर रहे हैं 5 लाख. शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज्ड. उसमें 12,500 कॉल्स इन एरियर. बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. नाउ सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, जस्ट लाइक फर्स्ट कॉल. जैसा फर्स्ट कॉल करे सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल 20,000 into 25, 5 लाख. अब इसके ऊपर भी 500 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो सेम बैंक अकाउंट डेटा 19,500 into 25, 4,87,500. कॉल्स इन एरियर अकाउंट 500 into 25, 12,500. टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 5 लाख. Being the second and final call money received. Okay. Now we have to cancel. We have to forfeit the shares. 500 shares we are forfeiting, right? The share capital account data 500 into 100 fully called up. The company has fully called up. यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल होने के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो पूरे 100 रुपीज. तो 500 into 100, 50,000. टू शेयर्स forfeited. That shareholder has paid application money and allotment money. He has not paid the first call and final call. तो फर्स्ट कॉल के 25 रुपए, फाइनल कॉल के 25 रुपीज नहीं पे करा उन्हें. 50 रुपीज नहीं पे करा, तो रिमेनिंग 50 रुपीज पे कर दिया. तो जो पे कर दिया उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेटा 500 into 50, 25,000. कॉल्स इन एरियर अकाउंट 25,000. अब देखिए कॉल्स इन एरियर, यहां पर 12,500 डेबिट करें,
और यहाँ पर 12,500 डेबिट करें, तो टोटल कॉल्स इन एरियर 25,000 है। अब वो 25,000 कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिए। बीइंग द 500 shares forfeited due to non-payment of first call and final call, ये forfeit हो गया। अब forfeiture के बाद reissue, अब वो 500 shares को reissue करें at 80 rupees, 80 रुपए में reissue कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेटा 500 इंटू 80 40,000 रुपीज आ गए। लेकिन 100 रुपये का शेयर 80 रुपीज में इश्यू करें, 20 रुपीज का लॉस हो रहा, डिस्काउंट हो रहा, तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 500 इंटू 20 10,000 टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 100 50,000। बीइंग द 500 forfeited shares reissued, 500 forfeited shares reissued at rupees 80. A balance remaining in shares forfeited account will be transferred to capital reserve. अब balance कितना है देखिए, shares forfeited account is credited by 25,000. Here shares forfeited account is debited by 10,000. तो 25,000 minus 10,000, 15,000 is the balance remaining in shares forfeited account. That amount will be transferred to capital reserve. Share forfeited account data to capital reserve 15,000. Being the balance in shares forfeited account transferred to capital reserve. That's it. So this is all about problem number 13.